Bismillah. Salatu wassalam ala Rasulillah. So what we have done is about the Git versus GitHub. So yesterday मैं भूल जाता हूँ ना हम पढ़ क्या रहे थे. यस हमने फ़िलहाल यहाँ से किया था है ना. या एग्जैक्टली आई गॉट इट. ये वाली डायग्राम जो है, हाँ इस वाली डायग्राम पे आते हैं. ठीक है ना. एवरीबडी विद मी एंड स्पीक अप. सो ये हमारी जो है वो लोकल, जो हम कह रहे हैं कि भाई हमारी ये लोकल डायरेक्टरी है, लोकल फाइल है. लेकिन पहला काम जो हमारा होगा वो क्या है, इसको क्या बनाना है पहले. स्टेज नहीं स्टेज तो बाद में करेंगे, पहले जो आप फोल्डर बनाओगे गिट गिट, हाँ डायरेक्टरी बनानी है. सो इट शुड हैव दिस डॉट गिट इनसाइड दिस, राइट. ओके. तो जितनी भी फाइल्स होंगी आपकी इसमें, दो हिडन फाइल्स, एक तो डॉट होगी, एक तो डॉट डबल डॉट होगी और एक डॉट गिट होगी. और फिर कल जाके आप डॉट गिट इग्नोर भी कर सकते हो, ताकि वो मैं बाद में बात करेंगे हम, मे बी ऑन मंडे. सो डॉट गिट जो हमारे होगी वो यहाँ पे होनी चाहिए. वो कैसे होगी, जब हम क्या करेंगे, git init. init. Very good. We will use the initialize. We initialize this folder as a git folder and dot git इसमें आ जाएगा. अब बात बनती है कि this is linked with the git. Now this can go to the git repository which is here, which is our standard versions in our laptop, in our machine. Okay, but before doing that we need to go through this stage. ठीक है ना. पहले इस स्टेज से गुजर के आपको यहाँ जाना पड़ेगा. This is the staging area, right. We have the staging area. Before going to this guy you need to have a staging area. So for that you need to add that particular file to this staging area. If you want to add all the files into the staging area, then you can say git add dot, or you have to say specify the name of the file here. Say for example git add index.html or git add style.css or something like that. So by that what will happen, the file from here will come into this area, okay, into the staging area. Now in staging area you could have many files, but those files which you want to put into the repository, and you do not want to, maybe sometimes you don't want to get things from here to the GitHub, but maximum times we want to get our stuff from here to GitHub. Okay, now GitHub is our online repository. Okay, the same thing, but it is now the online. We have got an online repository here. It is the same stuff, which is this guy. The same we have here can be into the GitHub. But for this thing here, we need to first do the git commit, okay, so that we'll get the thing from here to, from the staging area to our repository, git repository, but it's a local repository, right. So how you did that, using the git commit. Okay, now once you do the git commit and you have some messages with it also, we not only just do simply git commit, we also do git commit and minus m. We also give the message so that we have that, so that tomorrow if I want to restore to that point, I understand this message will give me an indication what my commit was all about, कि मेरा काम कहाँ तक पहुँचा था, so that I can roll back later on. So git commit will get stuff from the staging area into the repository. Now our job, that this is what we had done yesterday. Now our job is to get stuff from this repository, and whatever the comments we have, all those, maybe a single file may have 10 commits. What does that mean? Single file has a 10 commit. Yeah, can anyone tell me? Versions. Absolutely, because maybe you have created a one file and then you created the menu system, then you created its, you commit, then you second time come up, you created that hamburger menu, right. Fourth time comes up, you add up some buttons and all those things and all logics. Next time you commit again, the next time you come up, you are starting coloring the file and all that, right. So so these will be these as a chain of commits. Okay, we will have a chain of commits here on this repository of that particular file. Okay, so that means you can come among these commits, you can come anytime back to, if you want to say for example आपने कोई चीज़ की, अब आपने कलरिंग की और कलरिंग मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने तो मैसअप कर दिया ये सारा. So I want to go back to my I want to roll back, so I can go from here to back to the
using the checkout. Okay, I can do the checkout. Okay, and it will get me to the latest जो आपने आप कहीं पर भी जा सकते, जो आपकी मर्ज़ी है, जो आपको बेस्ट लगे कि मतलब यहाँ तक मैंने काम ठीक किया था. But now that's okay. But now what you want to do is we want to put up all these commits of all the files, whatever we have the repository, जितनी भी files को हमने commit किया है, I want that to be where with the same stream of commits and all, the chain of commits and all. Right now we have what's called as this is the branch. ये जो जिसके ऊपर ये commit कर रहे हैं ना हम, it is called as a branch. अभी हमारी default branch है called main. In fact, you can have a different branch. That's not a problem. You can have different branches. If you want to, you can have different branches. यानी कि अभी तो हमारी एक ही ब्रांच है. हो सकता है कि हमने क्या किया काम, कि हमने कोलैबोरेशन में काम किया. कोलैबोरेशन में क्या काम कर रहे हैं हम, ये जो फाइल बना रहे थे index.html, मैं फ़िलहाल HTML उसका ये जो है उसका स्ट्रक्चर एंड उसका मैं वो काम कर रहा हूँ, और मैंने दूसरा बंदा लगाया, वो मैं कर रहा हूँ उसको स्टाइलिंग कर दूँ. तो यानी कि जो आपने स्ट्रक्चर बनाया वगैरह यहाँ तक हो गया. अब तो आपने दो बंदे हायर किए. एक बंदा जो है वो CSS पे काम कर रहा है, दूसरा बंदा है वो जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहा है. वो अपने अपने कमेंट्स कर रहा है आगे आगे, और यहाँ से आप भी अपना HTML लगा रहे हो आगे. अगर ये CSS वाला बंदा इस पर CSS लगा रहा है एंड ऑल दैट, लास्ट में हम इनको मर्ज भी कर सकते हैं. वो ब्रांचिंग हम पढ़ेंगे मंडे के दिन. ठीक है, दैट विल बी अवर लास्ट क्लास प्रोबेबली ऑफ दिस गिटहब. ओके, सो ये जो ब्रांच आपकी है, ये ब्रांच जो है कि जिसके ऊपर आपने कमेंट कर रहे हैं, आप आगे आगे बढ़ रहे हैं. लेकिन फिर आपको मल्टीपल ब्रांचेस भी हो सकती है, यानी कि आप जिससे हम कोलैबोरेशन करेंगे, यस आप ही खुद दो वर्जन्स बना रहे हो फाइल के. एक पे आप CSS VSS कर रहे हो, और दूसरे पे आप ये कर रहे हो, क्या बोलते हैं इसको, आप सीधे स्ट्रक्चर अपना चला रहे हो. तीसरी ब्रांच पे आप JS कर रहे हो, क्योंकि आप चाहते हो कि हो सकता है कि आपने गड़बड़ी की, तो यू कैन कम बैक. सो यू आर क्रिएटिंग डिफरेंट वर्जन्स. लेटर ऑन जब आपको लगता है कि CSS भी ठीक है, ये वाला बंदा भी ठीक है, ये वाला बंदा भी ठीक है, देन यू कैन मर्ज. ठीक है, देन यू कैन मर्ज. सो उससे हमारा जो काम है बहुत आसान हो जाएगा. ठीक है, वी विल नॉट मैस अप विद आवर वर्क, क्योंकि हमारे लंबे प्रोजेक्ट जो होते हैं, बहुत बड़े प्रोजेक्ट जो हम काम करते हैं, तो उसमें हम खो जाते हैं फिर. तो उसके लिए अगर हमारे पास मल्टीपल चेकआउट पॉइंट्स होंगे, सो वी कैन चेक आउट टू एनी पॉइंट, सो दैट विल गिव अस लॉट ऑफ रिलीफ एंड ऑल. राइट, सो नाउ what is today's job? We have to go from this local repository into the global repository, which is online repository, which is the GitHub, which is what? GitHub, right? So you must already have the GitHub, I guess. What is the browser? Browser आ गया यार, एक मिनट, ये रहा browser. So हाँ, यही तो browser है. ठीक. ओके, हियर इज़ माई गिटहब. सो दिस इज़ आवर गिटहब, जो मैं अक्सर इस्तेमाल करता हूँ पढ़ाने के लिए. ठीक है, दिस इज़ द गिटहब. ओके, यू मस्ट हैव अकाउंट. एवरीबडी गॉट द हैव क्रिएटेड द गिटहब का अकाउंट. आई थिंक एवरीबडी हैज़ क्रिएटेड, राइट? अगर किसी ने नहीं किया तो अपना ईमेल डाल के लॉगिन करें. सिंपल प्रोसीजर है किसी भी साइट में लॉगिन करने का, तो वो यहाँ आप कर सकते हो. यहाँ पे आप जाना है, जो आपका यहाँ पे आइकन है आपका ना, फोटोग्राफ है छोटा सा, वहाँ पे आपकी सारी जो जानकारी आपकी है. इसमें मेनली हम जो काम करेंगे वो यूर प्रोफाइल. यू विल गो टू द यूर प्रोफाइल. अब जब आप प्रोफाइल पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको आपकी सारी चीज़ें होंगी, ओवरव्यू होगा, और मेन चीज़ जो मेरी यहाँ पे है वो रिपोजिटरीज़ है. ये आपकी रिपोजिटरीज़ है. ठीक है, सो अब हमें करना क्या है, जो हमारे पास आपका जो गिट है, गिट ऑन योर लोकल मशीन, उसमें जो चीज़ें हैं हम चाहते हैं कि वो कॉरस्पॉन्डेंस बने मेरे गिटहब के साथ. यानी कि मैंने शुरुआत की अपने गिट के साथ, और अब मैं चाहता हूं कि वो चीज़ें अपलोड होके उसी रिपॉजिटरी में, जैसे वहाँ पे स्ट्रक्चर था वही स्ट्रक्चर यहाँ पे भी आए, ताकि जब भी मुझे कुछ करना होगा वहाँ पे काम करूँगा मैं, कुछ भी अपडेट करूँगा मैं, वो सिंक्रोनाइज होना चाहिए, वो सिंक होना चाहिए हमारे गिटहब के साथ. ठीक है, और गिटहब जो आपका है इसे हम बोलेंगे रिमोट. क्या बोलेंगे? रिमोट. ठीक है, वो आपका लोकल फाइल रिपोजिटरी है, ये आपकी रिमोट रिपोजिटरी है. इस रिमोट का कुछ नाम भी है होता है, लेकिन गिटहब में हम अक्सर रिमोट को रिमोट ही बोलते हैं. ठीक है, आप इसको कुछ और भी बोल सकते, आई मीन ओरिजिन बोलते हैं, सॉरी, रिमोट को ओरिजिन बोलते हैं हम. तो आप इसको कुछ और भी बोल सकते हो. इस रिमोट जो आपका रिमोट है उसका नाम कुछ और भी रख सकते हो, लेकिन एडवाइजेबल है कि आप ओरिजिन ही रखें.
जो नाम ओरिजिन है वो ओरिजिन रखें, क्योंकि अगर आप आपने रखा फॉर एग्जांपल इसका नाम अपना जुनैद, अब जो दूसरा प्रोग्रामर पढ़ेगा कभी आपका ये, उसको जुनैद समझ नहीं आएगा एक चीज़ क्या है, लेकिन जब आपने ओरिजिन लिखा होगा उसको पता है अच्छा ये तो रिमोट का नाम है। समझ में आई बात? तो ये जो गिट हब है यहाँ, ये आपका रिमोट है, यानी कि रिमोट रिपोजिटरी है आपके गिट की। तो पहले आप क्या करेंगे काम कि मैंने जो यहाँ पे नाम दिया था MERN, MERN, अब मैं इसी नाम का पहले यहाँ पे रिपोजिटरी बनाऊंगा। अगर आप खो गए हो यहाँ पे उधर इधर करके, तो आप यहाँ पे वापस आए, यहाँ यूर प्रोफाइल में जाएं, ठीक है। यूर प्रोफाइल में जाने के बाद आप रिपोजिटरीज़ में जाएं, वहाँ आपकी रिपोजिटरीज़ हैं, लेकिन हम नई बनाएंगे। यहाँ न्यू ग्रीन बटन है, इसको क्लिक करेंगे तो नई रिपोजिटरी में हम लिखेंगे MERN। तो जो मैंने MERN लिखा तो वो MERN जो वहाँ था यहाँ पे। अब इसकी डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हो, जैसे मैं माई न्यू रेपो लिखूँगा वगैरह वगैरह, जो भी आपकी मर्ज़ी है एंड ऑल दैट। और इसको पब्लिक ही रखेंगे, क्योंकि प्राइवेट अगर रखेंगे तो फिर किसी को एक्सेस नहीं होगी। इसमें रीडमी फाइल भी ऐड कर सकते हैं, अभी नहीं करेंगे क्योंकि वो फिर हमारे वहाँ भी होनी चाहिए, लोकल में भी होनी चाहिए, वहाँ पे रीडमी फाइल नहीं है तो इसलिए इसको छोड़ देते हैं। एंड गिट इग्नोर जो हम बाद में करेंगे, जिसमें हम अगर बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ हमें नहीं लानी है, वहाँ से जो हमारी लोकल रिपोजिटरी में है, कुछ ऐसी फाइल्स भी होंगी जिनमें पासवर्ड है या कुछ है इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं शेयर नहीं करना चाहता, तो वो अपलोड नहीं होंगी, ठीक है। एंड सो ऑन। सो आई जस्ट गो अहेड एंड क्रिएट रिपोजिटरी हियर। Now we created a repository with the same name as that of the, with the same name as that in my VS Code, which as that in my computer, right? MERN, it's not VS Code हम दिखाते हैं खाली, इसको है तो ये हमारे कंप्यूटर के अंदर, मे बी ऑन डेस्कटॉप, ठीक है ना। जो आपका MERN है इट इज़ ऑन द डेस्कटॉप, एक फोल्डर है इसका नाम है MERN, वहाँ पर है इसका लोकेशन। अब ये खुद ही बता रहा है यहाँ से, देखिए ये बता रहा है आपको कि भाई साहब अगर आपको नई रिपोजिटरी बनानी है, वहाँ से कहाँ से अगर आप जैसे हमने कल किया था तो फिर इनिट करें, जैसे आपने एक रीडमी फाइल बनाया तो उसको इनिट करें, उसके बाद आप उसको कमिट करें, ठीक है, ब्रांच मेन में रखें। और फिर अगर आपको यहाँ लगानी है ऑन द रिमोट, देन राइट दिस कमांड git push -u origin main, ठीक है। तो लेकिन उससे पहले आपको रिमोट के साथ, रिमोट कौन है शाबाश, व्हाट इज रिमोट? रिमोट इज गिटहब। रिमोट इज गिटहब। आपको गिटहब के उस रिपोजिटरी, यानी कि जो हमारी ये MERN रिपोजिटरी है, मैं इसके साथ लिंक मारना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे देखें ये http github.com, फिर आपका यूज़र नेम जो भी होगा, जैसे यहाँ पे जुनी SGR जुनी श्रीनगर, इसमें आपका यूज़र नेम है, और MERN जो फोल्डर का नाम है .git, मैं इसके साथ करना चाहता हूँ ओरिजिन। इस ओरिजिन के साथ, ओरिजिन मैंने नाम रखा अपने रिमोट का, जो ये रिमोट है जिसका एड्रेस ये HTTP वगैरह वगैरह है, इसका नाम रखा ओरिजिन। आप कुछ भी रख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ओरिजिन रखना ही चाहिए ताकि बाकी लोगों को भी समझ आए। तो मैं एक रिमोट ऐड करूँगा, पहले काम में जो है मैं इसको कॉपी करूँगा ये सारा, ठीक है। आई जस्ट कॉपी दिस एवरीथिंग, कमांड C, एक मिनट डिक्शनरी बीच में आ जाती है, आई विल से कमांड से आई जस्ट कॉपी दिस ऐड जो ये है। तो मैं ये कहाँ पे करूँगा, अपने यहाँ पे, पहले मैं यहाँ पे गिट स्टेटस करता हूँ, गिट स्टेटस, ये हमारा कोई सारे कमेंट हो चुके हैं, कल हमने किए सब, अब हमें सिर्फ ये उठाना है, कहाँ डालना है वहाँ। देखिए पहले हमें कनेक्शन मारना है कि अगर मैं डालूँगा रिमोट कौन है मेरा, वो किधर है, वो एड्रेस कौन सा है। तो उसके लिए मैं कहूँगा कमांड V है कि मैं कहूँगा गिट रिमोट, यानी कि तू जो रिमोट है उसके साथ तू ऐड रिमोट कर, जिसका नाम ओरिजिन है। ओरिजिन आप कुछ भी रख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है कि आपने क्या नाम रखा उसका, जिसका एड्रेस ये है github.com जुनी श्रीनगर MERN.git, ठीक है। एंड आई से एंटर। जब मैंने एंटर किया इसने रिमोट बना दिया। अब हमें इसको पता है कि मुझे मेरा रिमोट कौन है, ठीक है। यानी कि ये गिट को पता है कि मेरा रिमोट कौन है, ठीक है, मुझे किसके साथ कनेक्शन मारना है। अब दूसरा काम क्या करना चाहिए, हमें पुश करना चाहिए। क्या करना चाहिए? पुश। डायग्राम में यहाँ पे देखो, जब यहाँ से हमें कोई चीज़ उठानी है, वी शुड डू द पुश। वी शुड डू व्हाट? वी शुड डू द पुश, ओके, द पुश कमांड। वी कैन से गिट पुश। सो हियर अगर आप साइड पे भी देखोगे, यहाँ पे ये बता रहा है कि आप फिर पुश करो, गिट पुश -u जो है, मैं बताऊंगा ये क्या चीज़ है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, कमांड C, लेकिन हम लिखेंगे
देखो कमांड वी, यहाँ पे गिट करें पुश माइनस यू ओरिजिन। ओरिजिन कौन है? क्योंकि ओरिजिन नाम पड़ा किसका? रिमोट का, ठीक है ना। ओरिजिन वो, अब मुझे ये http://github.com करने की ज़रूरत नहीं है रोज़ रोज़, क्योंकि मैंने उसका नाम क्या रखा? ओरिजिन। समझ में आई? यानी गिटहब का। यानी कि मैं कह रहा हूँ पुश करो ओरिजिन पे, और ब्रांच कौन सी है? मेन ब्रांच, क्योंकि वहाँ पे और भी ब्रांच हो सकती है। मैंने कहा ना कल आप कोलैबोरेशन में काम कर रहे होंगे, एक ही प्रोजेक्ट के 4-5 ब्रांच हो सकते हैं। अब किस ब्रांच में आप ऐड करना चाहते हो? फिलहाल तो हमारे पास डिफ़ॉल्ट है मेन, तो एक ही ब्रांच मेरे पास, तो मेन ब्रांच में ऐड करो इसको, ठीक है। और माइनस यू का जो है ये लिंक करता है हमारे लोकल को टू द रिमोट के साथ, ठीक है। यानी कि मुझे रोज़ रोज़ अब ओरिजिन मेन बोलने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि जब मैं एक बार मैंने अगर माइनस यू नहीं लिखूंगा तो मैं हमेशा पुश करने के वक्त मुझे ओरिजिन मेन लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने माइनस यू कहा तो अब ये बाय डिफ़ॉल्ट याद रखेगा कि आपको किसके साथ, ओरिजिन जो आपका रिमोट है और वहाँ पे कौन सी ब्रांच मेन, उसके साथ लिंक होगा, ठीक है। ऐसे एंटर, और इसने थोड़ा सा टाइम लगाया, इसने बोला ओके, इसने सारी चीज़ें बोली कि टू HTTP, इस जो रिमोट था वहाँ पे हमने किया, टोटल 10 मेरे पास है, डन बताया, 100% ठीक है, सारा चल रहा है। उसने सारी डिटेल्स बताई कि क्या क्या मैंने किए एंड ऑल दैट, ठीक है। अब अगर मैं सर जाऊँगा, हमें फेल आया, हाँ हमारा नहीं हुआ सर, मेरा नहीं हुआ। फेल टू पुश सम रेफरेंसेस। अब देखो आपने क्या किया होगा गड़बड़ कुछ। पहले हम देखेंगे मुझे आया कि नहीं। अगर मुझे आया पहले मैं देखूंगा मेरा चला कि नहीं चला, तो मैं यहाँ रिफ़्रेश करूँगा। अगर मेरे रिफ़्रेश में वो फाइल्स आ गई तो आ गई, वो मर्न में देखें वो सारी इंडेक्स, स्क्रिप्ट और स्टाइल। देखो इंडेक्स में हमारे पास, स्क्रिप्ट में वो 7 वाला किस्सा था, वहाँ पे a=7 था। इंडेक्स में जो था ये चीज़ें थी, स्टाइल में हमने कलर किया था p को, ये सारी चीज़ें आ गई। हाँ जी, आप क्या बोल रहे हैं? सर ये इसमें दिखा रहा है एरर, फेल टू पुश सम रेफरेंसेस टू द एड्रेस, जो ना वो एड्रेस हमने डाला था। आपने पहले जो है वहाँ पे बनाया, ये यहाँ पे यस यस, उसी नाम का बनाया, जी जी, जिस नाम का मैंने फोल्डर बनाया है उधर, वो भी मसला मगर नहीं उसमें था। वो इट डजेंट कैपिटल मैटर, एंड स्मॉल है, उससे तो कुछ नहीं होगा ना। इट डजेंट मैटर अगर आपने दूसरा नाम भी रखा है इसको, क्योंकि हाँ हम चाहते हैं कि वहाँ से यहाँ पे लाएं। अगर हम इसका दूसरा नाम बिल्कुल। भी देंगे, हाउ डज मैटर। लेकिन आपको पहले जो वहाँ पे HTTP वो जो था ना, उसके बाद जुनी श्रीनगर जो आपका नाम था, हाँ सर, वो वहीं से आ गए ना, वो हाँ। वहीं से आ गए। एरर क्या दिखा रहा, बता रहे हैं? failed to push some reference refs to वो लिंक जो हमने डाला था। यहाँ पे क्या चेंज किया आपने? यहाँ पे कुछ डिफरेंट कुछ रखा था आपने क्या? ना ना सर, वो अच्छा कल पहले का ही। बताओ आप, आपका ये जो गिट स्टेटस आ रहा था कि आपने, आपके पास सारा गिट है? स्टेटस वही आ रहा था जो आपका आ रहा था, सेम। गिट स्टेटस जैसे मैं करूँगा यहाँ पे, तो उसका मतलब मुझे यहाँ पे कमेंट का नथिंग टू कमिट कहना चाहिए। हाँ सेम है, नथिंग टू कमेंट, वर्किंग ट्री क्लीन। फिर तो कोई मसला ही नहीं है, फिर आपको कुछ और होगा, आप देखो इसमें, ठीक है। सर मेरा मगर यहाँ पर आ रहा है ऑन ब्रांच मास्टर, आपका मेन आ रहा है, मेरा मास्टर आ रहा है। आपने वहाँ पे मास्टर ब्रांच रखी है, अच्छा आपका मास्टर ब्रांच आ रहा है, ठीक 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 ठीक। मेरा मास्टर ब्रांच आ रहा है इसलिए। मैं आपको बताऊंगा आप क्या करोगे, एक मिनट आप ठहरे। पहले मुझे ये बताएं आप एक चीज़ की, जो जो कल बता रहे थे ना, जिनको VS कोड में वो चीज़ें नहीं चल रही थी, ठीक है। जैसे ना LS-A वगैरह नहीं चल रही थी, है ना। टच वाला, हाँ टच। वो एक पहले पहले सेटिंग पे जाएं, वो सेटिंग पे जाएं, ठीक है, ओके। उसके बाद सेट, आप पहले एक काम यहाँ पे करो, जो हमने कहा ना कि आपने क्या क्या कहा, पुश माइनस यू ओरिजिन के बाद क्या लिखा आपने? मेन सर लिखा ना। मैंने लिखा अब मेन, मास्ट हाँ उधर अब फिर मास्ट मास्टर लिखना है। अब मास्टर लिखो। पहले पहले मुझे ये ओके। बताओ, पहले यहाँ पे आ जाओ आप, यहाँ पे सेटिंग पे आ जाओ आप पहले। ये जो है ना सेटिंग, सेटिंग्स में जाओ, जो ना सेटिंग्स आपकी हैं इसमें, ठीक है ना। सेटिंग खुलाओ सारे, जिसको ना नहीं चल रहा था। मैं एक बार एक देखना चाहता हूँ चलेगा कि नहीं। आप टर्मिनल लिखो, टर्मिनल, ये मुझे भूल जाएगा फिर, मैं याद आ गया इस वक्त मुझे। टर्मिनल डॉट इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड क्या स्पेलिंग है, INTEGRATED डॉट डिफ़ॉल्ट, DEFAULT, इंटीग्रेटेड डॉट डिफ़ॉल्ट लिखो, ऐसे लिखा आपने।
सारे बताए लिखा आपने, टर्मिनल डॉट इंटीग्रेटेड डॉट डिफॉल्ट। यहाँ पे जो आएगा टर्मिनल इंटीग्रेटेड डिफॉल्ट प्रोफाइल, मेरा OS X का है, आपको विंडोज़ का होगा, ठीक है। आप विंडोज़ वाला खोलो अपना, वहाँ पे आपको अगर नल है या कुछ और है, आपको वहाँ पे आपका गिट बैश आएगा ना, वहाँ पे आपको गिट बैश सेलेक्ट करना है। वहाँ पे आपका क्या आ रहा है वहाँ पे, मुझे बताओ पहले। हाँ नल आ रहा है वहाँ पे। हाँ, वहाँ पे गिट बैश आ रहा है आपको ऑप्शन में। यस, मुझे तो बैश आ रहा है क्योंकि ये मैक है। आप गिट बैश रखो वहाँ पे। और कभी कभार यहाँ पे जो PWD ना वो नहीं दिखाता है। जैसे अगर हम जब भी हम करेंगे ना ये यहाँ पे टर्मिनल, ये अपना बिल्कुल वही जो कि प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है, जैसे कि डेस्कटॉप के यहाँ पर ये मर्न है जो मैंने फोल्डर खोला था, ये वही प्रॉम्प्ट में रखता है। अगर वो भी नहीं आया तो इससे वो भी आएगा। अब आप देखो ls-a चल रहा है आपको। तो मुझे यहाँ पे नहीं आ रहा ये देखने के बाद, मुझे भी नहीं आ रहा ये सेटिंग। कौन सी? आपने ऊपर लिखा, आप लिखो टर्मिनल डॉट इंटीग्रेटेड डॉट डिफॉल्ट, यही लिखा है मैंने। वहाँ पे जैसे आता है ना डिफॉल्ट टर्मिनल प्रोफाइल ऑन मैक। इफला आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करो। हाँ, उस पर क्या, यहाँ पे क्या आता है ऑप्शन आपके यहाँ? किसी माइक में बहुत शोर है यार, माइक बंद करो। आपको इफला आपको क्या आता है यहाँ पे? एक सेकंड सर, हमारा बैश तो नहीं आ रहा है, गिट बैश आ रहा है। गिट बैश लिखना है ना आपको, तो गिट बैश है, विंडोज में तो गिट बैश होता है। आप गिट बैश लिखो वहाँ पे, ओके कर दिया। और आप फिर टर्मिनल क्लोज करके फिर से खोलो। हाँ जी, ls-a चल रहा है अब? यार माइक बंद करो, फोन भी आ रहा है किसी का। नहीं सर, नहीं चल रहा है। अभी भी नहीं चल रहा गिट बैश रखने के बाद भी? ना ना ना। अच्छा, ls- हिडन चल रहा है। नहीं, आपको पहले गिट बैश का यहाँ पे जब आपने ये किया ना, गिट बैश रखा आपने तो हिडन चल रहा है, मगर नहीं एक मिनट मुझे बताओ पहले, जब मैंने गिट बैश रखा ना आपने, यस सर, टर्मिनल में आपको आया वो उसका मिंगो 64 समथिंग लाइक दैट? ना ना। फिर आपका गिट बैश सेलेक्ट ही नहीं। आप फिर से देखो, गिट बैश नहीं है फिर वहाँ। सर मुझे आया मिंगो ls-a आया। हाँ, आप लोगों ने जिसको नहीं आया ना, उसने पता क्या किया है, उसने गिट बैश वो सेट ही नहीं हो गया। वो फिर से करो, उसको रिस्टार्ट करना है। हाँ रिस्टार्ट करो, VS कोड को रिस्टार्ट करो। आपका जो आपका प्रॉम्प्ट आएगा ना, प्रॉम्प्ट यहाँ पे सर गिट बैश तो है उधर सिलेक्टेड है। बंद करो, फिर से खोलो VS कोड। देखो जो आपका ये है ना प्रॉम्प्ट यहाँ पे, वो सर मुझे आपका यहाँ पे गिट बैश भी नहीं आ रहा, मुझे कुछ नहीं आ रहा। मुझे यहाँ पे दो ही ऑप्शंस आ रहे हैं, एडिटर और व्यू। नहीं, आप कहीं और कर रहे हो। आप स्क्रॉल डाउन करो, वहाँ पे नल जहाँ पे आप सिलेक्ट है ना विंडोज में, वहाँ पे दो ही ऑप्शंस हैं सर। हाँ वहाँ पे वो कुछ नहीं है, वहाँ पे दो ही ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो एडिटर और एक व्यू। आपने क्या लिखा? मैंने लिखा टर्मिनल डॉट इंटीग्रेटेड डॉट डिफॉल्ट। हाँ, फिर उसके बाद वहाँ पे आता है दो ऑप्शंस आते हैं, एक तो आता है एडिटर और व्यू, और नीचे आता है क्रिएट टर्मिनल इन दी टर्मिनल व्यू। नहीं, इतना ही तो नहीं आएगा ना आपको, वो उसमें तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी। जो टर्मिनल आपने लिखा ना इंटीग्रेटेड डॉट डिफॉल्ट, ठीक है, हाँ, उसमें क्या क्या आ रहा है आपको? उसमें आ रहा है एक तो व्यू और एक एडिटर। नहीं, आप गलत कर रहे हो कहीं पे। आप देखो, मेरी बात अब सुनो। आपने सेटिंग खोलो सेटिंग जल्दी। हाँ सेटिंग के सर अंदर स्क्रॉल डाउन नहीं कर रहा हूँ, सेटिंग के scroll अंदर down मत लिखो, कुछ भी मत लिखो। आप सेटिंग जो है ना, सेटिंग पे क्लिक किया हाँ। आपने? यस सर। हाँ, सेटिंग के बाद आप जो साइड उसमें आता है ना, साइड में यूजर्स और वर्क स्पेस आता है ना, हाँ आ रहा है? हाँ सर। यूजर में ढूंढो टर्मिनल।
टर्मिनल है ना लेफ्ट साइड जो आपका ये स्क्रॉल यहाँ से है जो ना फीचर्स, जरा वहाँ दिखा। जो फीचर्स आते हैं ना आपके फीचर्स, जब आपने सेटिंग सिलेक्ट की ना वहाँ पे आप सेटिंग हाँ। सिलेक्ट करो, कहाँ पे नीचे सेटिंग्स में गया सर मैं, गियर यहाँ पे जहाँ गियर पे आइकन सेटिंग में आती सेटिंग पहले। में जाओ, सेटिंग में जो है ना सेटिंग हाँ। में आप लिखो टर्मिनल, ऊपर लिखो टर्मिनल, लिखो टर्मिनल, बस लिखा सर टर्मिनल टर्मिनल। लिखा टर्मिनल। अब लेफ्ट साइड आ रही है ना विंडो, लेफ्ट साइड आ रही है ना, तो वो स्क्रॉल बार करके विंडो आ रही है लेफ्ट साइड विंडो। अब दो विंडोज बनेंगी ना इसकी, जो ही आपने टर्मिनल लिखा तो दो विंडोज हाँ। खुलेंगी, है ना, जिसमें आपका टेक्स्ट एडिटर वेक्स्ट एडिटर वो आता है ना, उसमें यहाँ पे कुछ नहीं। आपने टर्मिनल लिखा, टर्मिनल लिखा सर मैंने। टर्मिनल में क्या आ रहा है आपको सेटिंग्स? सर यहाँ पे आ रहा है एक साइड से आ रहा है ये वर्क बेंच, हाँ। फीचर्स, एक्सेसिबिलिटी। उसके नीचे जाओ, हाँ उसके नीचे यहाँ पे आ रहा है सर गिट। नहीं एक्सेसिबिलिटी के नीचे क्या आता है? उसके बाद आता है डीबग। उसके डिबग के बाद, हाँ डीबग के बाद आता है टर्मिनल। तो वह है ना टर्मिनल, तो कहाँ है? तू मगज का कर क्लिक। सर किया इस पे। अब राइट साइड देखो, करो स्क्रॉल नीचे, नीचे जाओ, किया जहाँ पे OS X कहीं पे होगा ना OS X, उसके बाद होगा विंडोज, हाँ उसके बाद और स्क्रॉल करो नीचे, किया। वहाँ पे आप ढूंढो, क्या था इफला उसका नाम? टर्मिनल इंटीग्रेटेड डिफॉल्ट प्रोफाइल विंडो। डिफॉल्ट विंडो, हाँ टर्मिनल इंटीग्रेटेड डिफॉल्ट विंडो ढूंढो, उसके साथ टर्मिनल इंटीग्रेटेड डिफॉल्ट विंडो, हाँ आया सर। वहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे नल पावरशेल गिट बैश लिखो वहाँ विंडो, गिट बैश आया सर। कार किया सर मैंने। खुला में टर्मिनल विंडो, रिस्टार्ट पहले। वैसे रिस्टार्ट करने की जरूरत नहीं थी, फिर भी चलो करो रिस्टार्ट। रिस्टार्ट करने के बगैर ही मुझे आया। इसमें रिस्टार्ट करने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन अगर मुमकिन है चुपना कोई साइज मुझे गड़बड़, रिस्टार्ट करना पड़ा। तो किसी ने गुनाह किए होते हैं ना ज़्यादा, तो उसको थोड़ा सा सारी मा शरीफ नफर हम सिंह पे माज दिन पे माजिद शरीफ इंसान चलान जल्दी वन गई ये टाइम, चलो जल्दी किया हो गया सर एक मिनट लिखता हूँ। कर अख बंद अक था याद गोवा क्या सर हाँ हो गया। तेरस मुबारक मकार में मुबारक कारी में एनीवेज, तो नाउ हमारा जो है यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारे पास जो हमने क्या किया मैं तो भूल ही गया इतने में। ओके आपका चला आमिर, आपका हो गया वो पाई के आपका नहीं, आपका वो चला वो फिर वो अपलोड हो गया, मेरा तो हो गया ना। नहीं -A नहीं, इस पे नहीं मैंने चेक नहीं किया अभी तक। हाँ इसको रिफ्रेश करो यहाँ पे, और यहाँ पे आपकी सारी फाइल्स आनी चाहिए, ठीक है। इसमें अगर आप फिर जाओगे इनसाइट्स के ऊपर, यहाँ पे इनसाइट्स में जाओ, यहाँ इनसाइट्स है, वहाँ पे जाओगे और वहाँ आपका नेटवर्क है कहीं पे, ये यहाँ पे आपको ये सारे कमेंट्स बताएगा कि ये आपने कमेंट्स किए, जहाँ index.html आपने क्रिएट की थी, अगर आप उसको क्लिक करोगे तो आपको सारी डिटेल्स बताएगा वो, ठीक है जानू को, ठीक है, वो सारी डिटेल्स आपको बताएगा आपने क्या किया था, डिफरेंट विंडो में खुलेगा। अगर फिर नेक्स्ट कमेंट पे करोगे तो ये वो वहाँ पे हमने क्या script.js की थी, ऐड style.js ऐड की थी, और उसको हम सारा देख सकते हैं, ओपन कर सकते हैं वहाँ पे, एंड इसको कॉपी कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, देख सकते हैं। और तीसरा जो हमारा ये है, और उसमें हमने क्या क्या चेंजेस की, वहाँ पे हमने खाली एडिट किया, क्रिएट किया था, और यहाँ पे हमने एडिट किया, इनको A=7 रखा, इसमें कलर इसको रेड रखा, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पे इन डिटेल मिल जाएंगी, ठीक है। अच्छा अब हम अगर वापस अपनी कोड पे जाएंगे तो हमारे पास यहाँ index.html है, स्क्रिप्ट है, जैसे index.html ये है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे दिखाएगा, यहाँ पे ये है। फ़र्ज़ कीजिए मैं इसमें एक p टैग ऐड करूँगा यहाँ पे, 1 सेकेंड, इसको
एडिट दिस फाइल करेंगे, यहाँ पे पेन आइकन था उसके ऊपर क्लिक करें ताकि एडिट हो जाए, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसमें एक पी टैग ऐड करूँगा मैं यहाँ पे, ठीक है, और मैं लिखूँगा क्रिएटेड इन गिटहब, ओके, क्रिएटिंग गिटहब, कमांड एस, सेव इट। नो वी शुड कमिट चेंज, नॉट कमांड एस, सॉरी मैं तो लगा मैं वहाँ पे हूँ, वी शुड नॉट कमांड एस, वी शुड रादर कमिट चेंज। यहाँ पे ऐड, कि वहाँ पे जो गिट है आपका, वहाँ दो प्रोसेस होती हैं, गिट ऐड और कमिट, दो चीज़ें होती हैं। यहाँ पे सीधे कमिट हम कर सकते हैं, वी कैन स्किप द ऐड, राइट। और इसमें आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो कि आपने क्या किया। फिलहाल कमिट मैसेज में अपडेट इंडेक्स HTML इसने खुद ही कहा, और अगर आप कुछ डिटेल में लिखना चाहते हो वो भी कर सकते हो। और कमिट कहाँ करना चाहते हैं, मेन ब्रांच में या नया ब्रांच बनाओगे, हम कहते हैं नहीं अपनी ही ब्रांच में करो, मैं तो इसी पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। लेकिन जब यहाँ पे हो गया, मैं अपने VS कोड में आ जाऊँगा, वहाँ इंडेक्स पे जाऊँगा, वहाँ तो कुछ है नहीं, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँगा गिट पुल, क्या कहूँगा, गिट पुल, तो आपका यहाँ पे जो वहाँ आपने चेंज की थी, देखिए यहाँ पे आ गया क्रिएटेड इन गिटहब, जो वहाँ पे हमने गिटहब में चेंज की वो आपके VS कोड में आ गया। दैट मीन्स ए परफेक्ट सिंक है। अब अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ कुछ, ठीक है ना, मैं एक पी टैग लगाता हूँ, मैं कहूँगा क्रिएटेड इन VS कोड, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे VS कोड में किया, इन लोकल मशीन व्हाटएवर, ये मैंने उसमें नहीं किया, कमांड एस करूँगा। लेकिन जब मैं गिटहब पे जाऊँगा वहाँ तो ये होगा नहीं, है ना। इफ़ आई से रिफ्रेश, दिस वोंट बी देयर, व्हाई, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे कहूँगा गिट स्टेटस, ठीक हो गया, अभी ये मॉडिफाइड है। मॉडिफाइड कहाँ पर है ये फाइल अभी यहाँ पर है, ये फाइल जो है अभी यहाँ पर है, ठीक है ना। आई हैव टू गेट इट इन टू फर्स्टवेयर, क्योंकि मैं गिट पे हूँ, तो आई हैव टू गेट इट फ्रॉम दिस फाइल, फ्रॉम हियर टू staging area, from staging area to repository, from repository then I have to push it to the GitHub, तब जाके वो आएगी, वरना नहीं आएगी तब तक, है ना। So what should I do to add it? First to the git add. So I will say git add, I can say dot or the file name, अब dot आसान हो जाता है। If I say now the git status, now it is telling it's modified, okay, it's but green. But why is it it is still in a modified version? Because I need to do it to commit, right? It is ready to commit now because it's green, means it's ready to commit. That means it's already in a stage area, so it is telling it is staged, okay. अगर आपको वापस लाना है इससे अनस्टेज करना, you can use git restore, वो करना आप git restore staged को लिखेंगे, फिर फाइल नाम लिखेंगे, ठीक है ना। अगर हम लिखेंगे git restore -2 staged, जो staged फाइल है जिसका नाम था, क्या नाम था इसका, index.html, index.html, एंटर। अब हम कहेंगे git status, सो आपका जो ये index.html है ये रेड आएगी अब, क्यों, क्योंकि ये अब इस एरिया में है, यहाँ, ठीक है, ये यहाँ पे है। तो अगर हम यहाँ से इसको यहाँ लाना चाहते हैं, स्टेजिंग एरिया में लाना चाहते हैं, वी हैव टू अगेन सेट व्हाट गिट ऐड, ठीक है। तो मैंने आपको ये दिखाया था कि अगर वापस हमें लाना है यहाँ से, हमें ऐड नहीं करना। अब अगर मैं कहूँगा गिट स्टेटस, नाउ इट इज़ ग्रीन, इट इज़ रेडी टू कमिट। कमिट करके कहाँ जाएगी, टेल मी वेयर टू गो, गिट लोकल, एग्जैक्टली, ये लोकल रिपोजिटरी में जाएगी, गिट की लोकल रिपोजिटरी में। लेकिन जब मैं गिट कमिट करता हूँ, मैं उसके साथ साथ क्या लिखता हूँ, एक मैसेज, है ना। मैसेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप नहीं लिखोगे वो भी करेगा, लेकिन कल जाके हमें समझ नहीं आएगा हमने क्या अपडेट्स किए थे वहाँ पे, क्योंकि मैं ऐसे नहीं ना करूँगा कि मैं एक लफ्ज़ लिखूँगा फिर कमिट करूँगा। मैं तो कोई काम करूँगा ना, दिन भर मैंने काम किया, फिर मैं कमिट कर रहा हूँ, एक वर्जन बना फाइल का, ताकि मैंने एक पेज बनाया था परफेक्टली, तो मैं मैसेज दूंगा कि मैंने ये पेज बनाया आज, ठीक है ना, ऑल दैट, सो दैट अगर मैंने कल को फिर और काम किया तो देन आई कैन कम बैक, आई कैन चक आउट, ठीक है। अब इसको मैं लिखूँगा कि मैंने पी टैग किया था ना, पी टैग क्रिएटेड, जस्ट सिंपल मैसेज एंड एंटर,
एंड वी आर डन। लेकिन अब ये कहाँ पर है, ये फाइल कहाँ पर है? अब ये वर्जन, ये एक और वर्जन बना इंडेक्स फाइल का, है ना, जो ऑलरेडी मैंने क्रिएट की थी ना इंडेक्स फाइल, वो कमिट की थी मैंने, लेकिन अब इसको चेंज किया मैंने फिर से। अब ये एक और वर्जन बना इस चीज़ का। अब मुझे पता ये मैं कहाँ डालूंगा, ये कमिट करके मैं इस वक्त कहाँ पर है ये गिट लोकल रिपोज। हाँ, अब मुझे वहाँ से उठा के यहाँ, अभी यहाँ पे है ना इस ड्रम के अंदर, ठीक है ना। अब वहाँ से उठा के मुझे कहाँ डालनी है, यहाँ पर है इसमें पुश करना है। exactly, I should push, so what is the this thing, tell me what is the command for that? Git push -u origin main master। हाँ, क्या मुझे कहना पड़ेगा कि भाई रिमोट कौन है? नहीं, इस टाइम नहीं, अब -u किया है ना। एग्जैक्टली नहीं, रिमोट कौन है, मतलब HTTP वो ना मैंने जो कहा ना, क्योंकि अगर मैं वो कहूँगा गिट रिमोट ऐड रिमोट करूँगा मैं, गिट ऐड रिमोट है कहीं पे यहाँ पे, पता नहीं। अगर मैं कहूँगा गिट ऐड, हमने गिट ऐड रिमोट किया था ना, गिट रिमोट ऐड रिमोट नहीं, रिमोट ऐड, सॉरी, हाँ, गिट रिमोट ऐड, जिसका नाम मैंने क्या रखा था, ओरिजिन, और फिर मैंने किया था वो HTTP वगैरह वगैरह। अगर मैं ये करूँगा, ठीक है, पहले तो गलत बात है, पहले उसको बताना पड़ेगा, लेकिन ये बताएगा ओरिजिन तो ऑलरेडी है हमारे पास, है ना। यानी कि अगर मैं यहाँ पे अगर आपको देखना पड़ेगा ना वो, अगर आप देखना चाहते हो कि आप वो इसका वो क्या है, इसका वो ना एड्रेस क्या है HTTP काइंड, सो यू कैन गो टू द कोड, you can go to code here and you go to the code here and there is the HTTPS, this is the thing which we are looking for, so I can copy this out here, okay। so कहाँ पे है कि अगर आप घूम गए हो कहीं पे, your profile में जाएं, ठीक है, रिपोजिटरीज़ के अंदर जाएं, अब जो रिपोजिटरी आपको बनी जिसके ऊपर आप जाना चाहते हो वहाँ पे जाएं, उसका जो कोड है यहाँ पे उसके अंदर जाएं और HTTPS जो इसका है यहाँ पे ये कॉपी करें, ये इसका एड्रेस है। सो इफ़ आई डू इट हियर, यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, यहाँ पे गिट रिमोट ऐड, हाँ जी, ऐसे करते थे ना हम पहले, ओरिजिन, ठीक है, उसके बाद क्या लिखता था मैं, कमांड V, ये वाला। तो ये कहेगा भाई रिमोट तो ऑलरेडी है, तू फिर से क्यों बना रहा है, ठीक है। अब रोज़ ये करने की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे सीधे पुश करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे रिमोट हो गया है, जो रिमोट है जिसका जो एड्रेस है वो लिंक है गेट के साथ, आई डोंट नीड टू डू दैट अगेन अगेन, ठीक है ना, ओके। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अब मैं क्या करूँगा, मैं पुश करूँगा, है ना। पुश पहली बार जब मैंने पुश किया, गिट पुश कहना चाहिए ना, नॉट पुश, ओके, गिट पुश, उसके साथ मैंने क्या लगाया था ऑप्शन, हाँ जी, -u, उसके बाद क्या लिखा था मैंने, ओरिजिन मेन, तो मैंने -u किस लिए लगाया, ताकि ये याद रखें हमारा रिमोट कौन है। तो मुझे ओरिजिन बोलने की ज़रूरत नहीं, मुझे ब्रांच बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे एंटर करना है, दैट इज़ इट, डन, ठीक है। गिट पुश करो, अब कौन सी किधर करना है, वो कौन है गिटहब में, किधर करना है, वहाँ किस रिपोजिटरी में करना है, और उस रिपोजिटरी में कौन सी ब्रांच है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ उसको। तो अब हम अगर यहाँ पे जाएंगे, हम इसको रिफ़्रेश करेंगे अपने ब्राउज़र को, और मैं इंडेक्स पे जाऊँगा, तो होपफुली, इनफैक्ट डेफिनेटली, created in VS Code in local machine has come up, ठीक हो गया। हाँ जी, इज दैट क्लियर? यस सर। यहाँ पे आपको मास्टर आ रहा था? यस सर, हाँ मास्टर। ओके, वी कैन इनफैक्ट चेंज द नेम ऑफ द दिस ना मेन, मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। यहाँ पर भी जो मेरा अगर मास्टर है मैं उसको भी चेंज कर सकता हूँ। फिलहाल ये आपको समझ आया? What is time? 10:16. We have time. So what we do is now, हमने काम किया था कि हमने कहाँ से शुरू किया था? Look at me. हमने काम कहाँ से किया था भाई साहब? Working directory. Local to. हमने लोकल से काम किया था। उसके बाद हमने क्या किया काम? हमने पहले उसको गिट रिपोजिटरी बनाया यूजिंग द इनिट, ठीक है ना, गिट इनिट किया। उसके बाद वो गिट डायरेक्टरी बन गई, गेट डायरेक्टरीज को ऐड किया हमने स्टेजिंग एरिया में। स्टेजिंग एरिया से हमने कहाँ लिया उसको?
network problem, damn. नहीं यार, एयरटेल ब्लैक बनाया मैंने, तब से ब्लैक ही हो गया। ये कभी कभार ये ब्लिंक करता है, कोई मसला नहीं। ब्लैक आउट का सर। इसको ब्लैक आउट हो जाता है। एनीवेज, यू गेटिंग माई पॉइंट? व्हाई इज योर कैमराज ऑफ? ओपन अप योर कैमराज। आप में से कितनी लड़कियां हैं भाई? एक ही तो है? नहीं, 2 लड़कियां हैं खाली। नहीं, 2 हैं, राही बिस्मा भी है ना। ओके, लड़कियों को होता है थोड़ा सा, बाकियों को तो है नहीं मसला यार। तुम लोगों ने क्यों कैमरा बंद रखा हुआ है? यू शुड कीप कैमराज ऑन कि तुम्हारी शेंगित तुझे करा। यस सर, बोली। एनीवेज, अच्छा इनाम सर पे मैं वन याद आप, अच्छा आपकी शक्ल मुझे आप याद आ गई। ठीक ठीक, मुझे नहीं पता था आप हो। सर ओके तो चलिए ठीक, समझ आ रहा है इनाम? जी जी समझ आ रहा है। तो देखिए हमने क्या कहा, हमारे पास टाइम कम है, हम कुछ काम करेंगे यहाँ पे। अब हम रिवर्स करेंगे इसका, कि हमने कहा कि भाई साहब हम जो हमारा जो था, हमने VS कोड से शुरू किया, अपनी मशीन से शुरू किया। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि VS कोड हो, कोई भी आपका हो या आपकी मशीन पे आपसे शुरू करना है आपने, तो आपका टर्मिनल हो या आपका पावर शेल हो या CMD कमांड प्रॉम्प्ट हो, वहाँ से आप कर सकते हो। फाइल्स आप क्रिएट कर सकते हो नोटपैड से, कहीं से भी। ये कोई मसला नहीं है कि आप VS कोड करो या उसका टर्मिनल इस्तेमाल करो। अब हमने VS कोड इस्तेमाल किया फॉर सिंपलिसिटी पर्पसेस, जो क्योंकि हम इसी में काम कर रहे हैं। तो हमने फ़ोल्डर बनाया, उस फोल्डर को इनिट किया ताकि वो गिट फोल्डर बने, उसको ऐड करवाया ताकि वो स्टेजिंग एरिया में जाए। जो भी फाइल्स वहाँ पे हमने हैं या मॉडिफाई किया या कुछ भी किया, तो वो स्टेजिंग एरिया में गया। ठीक है, अगर हमारे पास गिट स्टेटस, मैं आई एम आस्किंग द क्वेश्चन, आंसर दिस। अगर हमारा गिट स्टेटस दिखाता है अनट्रैक्ड, उसका मतलब क्या है? इनिशियलाइज नहीं हुआ है अभी। उसका मतलब है कि फाइल जो है वो स्टेजिंग एरिया में नहीं है। वो कहाँ है? वो डायरेक्टरी में कहीं पे है। अभी बात नहीं बनी है, अभी वो स्टेजिंग एरिया में नहीं है ना। अगर मॉडिफाइड दिखा रहा है तो यानी कि आपने उसके ऊपर काम किया हुआ है, तो यानी कि आपने उसके ऊपर चेंजेस लाई हैं। ठीक है, अगर वो फाइल को स्टेज्ड दिखाएगा, उसका मतलब है कि वो अनट्रैक्ड नहीं है, आपने उसको ऐड किया हुआ है, गिट ऐड आपने किया हुआ है। वो कहाँ पे है वो फाइल? इनटू द स्टेजिंग एरिया। ठीक हो गया। अगर अनमॉडिफाइड दिखा रहा है तो उसका मतलब है कि वो मॉडिफाइड नहीं, वो तो सीधी सी बात है। और अब जो स्टेजिंग एरिया में है उसको हम यहाँ पे लाएंगे, कहाँ पे? तो आवर लोकल रिपोजिटरी यूजिंग द गिट शाबाश कमिट, गिट कमिट। ठीक है ना। अच्छा जी, हो गया वो। अब गिट कमिट करके लोकल रिपोजिटरी बन गई। अब मुझे चाहता हूँ कि मैं इसको कहाँ ले जाऊँ? अपने गिटहब पे, जो कि मेरा रिमोट है। तो पहले मैं वहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा, फोल्डर क्रिएट करूँगा, एक रिपोजिटरी क्रिएट करूँगा, न्यू रिपोजिटरी बनाऊँगा। रिपोजिटरी इज़ नथिंग बट ए फोल्डर। तो अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरे यहाँ पे मेरे लोकल सिस्टम है वहाँ जाए। तो उसके लिए मैं पहले क्या करूँगा? रिमोट खड़ा, आई विल ऐड द रिमोट। उसको बताऊँगा कि भाई साहब ये फोल्डर है, ये रिपोजिटरी है फलाने वेबसाइट की, मेरे ना अकाउंट की वगैरह वगैरह। तो वहाँ पे आपको करना है, तो यू हैव एडिड द रिमोट। उसके बाद आपको पुश करना है और बोलना है कहाँ पुश करोगे, कि उस रिमोट के ऊपर और किस ब्रांच के ऊपर। और अगर हमने -u किया इस्तेमाल, उसका मतलब है कि फिर हमेशा जब भी आप करोगे तो वो उसी रिमोट और उसी इस पे जाएगा। ठीक हो गया। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि जैसे कि अक्सर काम होता है कि हम पहले आपके गिटहब पे ही जाते हैं, हम गिटहब पे ही जाकर काम करते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू विल डू इट, मतलब आप अपने ही ऊपर काम कर रहे हो खाली, that you are working on your projects only, but rather you can work on some others projects also. maybe आपको कोलैबोरेशन में काम करना है, तो मैंने इफ्ला का प्रोजेक्ट मुझे क्या करना है, इसको टर्म को गिट टर्म में हम इसको बोलते हैं क्लोन करना है। या आपने सीखने के लिए यहाँ पे करोड़ों प्रोजेक्ट्स हैं, करोड़ों लोगों ने अपना कोड किया हुआ है, आप देखना चाहते हो उसने क्या किया, और वो आप अपने इसमें लाना चाहते हो, उस पर काम करना चाहते हो, फिर उसमें फोर्क वगैरह वो करोगे आप, वो दूसरी बात हो गई। लेकिन फ़िलहाल मैं चाहता हूँ कि कोई प्रोजेक्ट जो आपका गिटहब के ऊपर है, या मैं क्रिएट करूँगा नया,
I will go to here, I will say your profile, and I create a new repository, then I create a new repository, ठीक है, and I call it, say for example MERN2, मैं कहूँगा इसको MERN2, ठीक है। अब ये डिस्क्रिप्शन क्या है, दिस इज़ न्यू MERN2 रेपो, या कुछ भी कह सकते, जो भी आपको लिखना है, पब्लिक वगैरह है। इसमें मैं रीडमी फाइल भी करता हूँ ऐड फ़िलहाल इस वक्त, ठीक है। एंड दिस इज़ रीडमी, जो आपके होते हैं readme.md, मार्कडाउन इसका जो है सिंटेक्स, मार्कडाउन इज इटसेल्फ हैविंग अ डिफरेंट सिंटेक्स। दिस इज़ द readme.md, इसके अंदर आ गई है, ओके। अगर हम इसमें खोलेंगे, इसमें readme.md में खोलेंगे हम, ठीक है, यहाँ पे हम इसको एडिट करेंगे, पेन आइकन है, क्लिक करें, यहाँ पे हैश, अगर वहाँ से आपको रीडमी बनाना है तो पहला आप हैश # लगाओगे और बताओगे कि इसका नाम क्या है। एंड यहाँ पे मैं, अगर मुझे लिखना है, मैं लिखूँगा BR टैग, यू कैन यूज़ द BR टैग, ताकि न्यू लाइन में हम HTML भी लगा सकते हैं, या मार्कडाउन एक खुद एक लैंग्वेज है जिसमें आप लिख सकते हो। आई डोंट वांट टू डील विद द मार्कडाउन राइट नाउ। दिस इज़ द MD readme.md फाइल, आपको सीधे लिख सकते हो यहाँ पे readme updated in GitHub, ठीक हो गया, अपडेटेड। अब अगर थोड़ी देर भी हो जाएगी, मगर ये कॉन्सेप्ट हम क्लियर कंप्लीट करेंगे, यानी कि वी आर क्रिएटिंग नाउ स्टफ इनटू आवर गिटहब एंड नाउ गेटिंग इट इनटू आवर getting it into our local machine. This is good for, you know, starting any new project, also good for the collaboration, also good for, you know, this will work if you want to use somebody else's work and want to work on that, okay। तो फिर आप कमिट चेंज करें यहाँ पे, तो कमिट किया मैंने इसको। तो ये जो आपने ये बनाया, जो MERN2 आपने बनाई, ये कहाँ पे बनाया आपने? हाँ जी, और गाइस विद मी, कैन नेट गो? यस, ये हमने बनाई गिटहब में, ये हमने बनाई गिटहब में। हम, मैं चाहता क्या हूँ, ये हमारे लोकल रिपोजिटरी, ये यहाँ पे आए, ठीक है ना। आई जस्ट फर्स्टली क्लोज दिस फाइल, आई से क्लोज फोल्डर, ठीक हो गया क्लोज सारा। अब तो मेरी कोई फोल्डर खुला नहीं है। आई गो न्यू टर्मिनल। अब न्यू टर्मिनल जब आप खोलोगे तो ये आपका जो है, मैं पहले डेस्कटॉप पे जाऊँगा, CD डेस्कटॉप, मैं डेस्कटॉप पे जाऊँगा यूजिंग CD डेस्कटॉप, आई एम गोइंग टू द डेस्कटॉप। अब मैं चाहता हूँ कि वो जो बंदा है जो रिपॉजिटरी मेरे गिटहब पे है, वो यहाँ आए। कहाँ आए? तो पहले हमें, तो यानी कि गोया कि हमें उस अकाउंट के अंदर घुसना है अब, ठीक है, जो कि वहाँ पे है, ओके। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कॉन्फ़िगर करते हैं अपने गिट को, हम कहते हैं गिट कॉन्फ़िग, ठीक है, और फिर कहते हैं इसको ग्लोबल --2 ग्लोबल। हम लोकल भी कर सकते हैं, अगर हमारे पास लोकल अकाउंट है, कोई स्पेशल अकाउंट है, बहुत सारे अकाउंट हो सकते हैं, तो हम उनके ऊपर काम कर सकते हैं। लेकिन ग्लोबल मीन्स हर एक के ऊपर काम करो, जो भी उस अकाउंट के ऊपर है, जिसका यूज़र डॉट नेम आप लिखोगे, जो वहाँ पे यूज़र नेम होगा, जैसे वहाँ पे यूनिक श्रीनगर यूज़र नेम था, ठीक है, एंड यू से एंटर। अब आपका गिट जो है वो कॉन्फ़िगर हो गया यूनिक श्रीनगर अकाउंट के, बिकॉज मैं रोज़ क्योंकि मुझे ऑथेंटिकेशन करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं होगा कोई भी काम कर पाएगा। कोई भी मेरी फ़ाइल जो है ना अपने अंदर लेके उसमें क्योंकि उसमें चेंज कर सकता है वो, ठीक है ना, बिकॉज ये सिंपल फाइल नहीं है, कॉपी एक हो गया डाउनलोड करना, ये डाउनलोड करना नहीं है, ये है कि मैं वहाँ से ला के अपने सिस्टम में लाऊंगा और उसमें मैं चेंज लाऊंगा, यानी कि वो मेरा सॉफ्टवेयर ही चेंज करेगा सारा, ठीक है। तो मुझे ऐसे नहीं, उसमें ऑथेंटिकेशन देनी पड़ेगी। तो उसमें पहले, इसीलिए मैं गिट को बोल रहा हूँ कि भाई आप ऐसा करो, और गिट कॉन्फ़िग ग्लोबल यूज़र डॉट ईमेल। तो ईमेल कौन सा है, फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे junid@live.in था, ईमेल आईडी मेरा शायद वही था, live.in कि दूसरा था, वैसे यही है, एंटर, ओके। अब अगर मैं कहूँगा गिट कॉन्फ़िग, उसके बाद कहूँगा माइनस लिस्ट, तो ये बताएगा मुझे। तो इसने अगर बताया तो सक्सेसफुली है कि ब्रांच वहाँ पे मेन ब्रांच है, ऑक्सी चेन है, और ये चीज़ें हैं मेरे पास, यूज़र डॉट ईमेल ये है, एंड सो ऑन, ठीक है।
अब मैं कह सकता हूँ इसको कि आप गिट की टर्मिनोलॉजी में अगर आप वहाँ से लाना चाहते हो, इट्स कॉल्ड क्लोन. इट्स कॉल्ड व्हाट? आई वांट टू क्लोन इट. सो आई विल से क्लोन. ओके, गिट, पहले हम क्या कहेंगे? गिट डॉट क्लोन, गिट क्लोन, गिट क्लोन. लेकिन करना क्या चाहते हो क्लोन आप? इसको. तो यहाँ जो आपका ये MERN2 है जो आप क्लोन करना चाहते हो, इसको यहाँ पे आप कोड में जाओगे और इसका ये रिपोजिटरी जो आपके इसका एड्रेस है HTTP, ये कॉपी करोगे. फिर आप यहाँ पे कहोगे git डॉट क्लोन कमांड v, और उसके बाद एक फोल्डर का नाम जिसमें ये क्लोन होगा. git डॉट क्लोन लाएगा इसको इस डायरेक्टरी में, जो डेस्कटॉप जहाँ पे मैं हूँ इस वक्त, वहाँ पे लाएगा जो भी इस MERN2 के अंदर है. और मैं कहूँगा यहाँ पे इसका फोल्डर का नाम रखूँगा कुछ whatever I will call it. Maybe I call it Juni. No, Juni is already my name. Maybe I call it ifla right now. Okay. Now ifla will be a folder. ifla will be a folder जिसके अंदर ये कॉपी होगा. जिसके अंदर क्या होगा? ये कॉपी. तो अगर मैं जाऊँगा डेस्कटॉप पे हूँ ही मैं कहूँगा cd ifla. अगर आया होगा वो तो मैं cd ifla करूँगा. तो अगर ये आया तो आया है, that means कि yes it is there. As you could see, ifla is here, right? And if I say फाइल देखने के लिए क्या करते हैं हम? git ls minus a. तो वहाँ पे मैंने क्या किया? गलत किया कुछ मैंने. खाली ls नहीं, खाली ls क्यों करेंगे हम? अच्छा ls, हाँ ls सॉरी, git नहीं, हाँ ls minus a. अब यहाँ पे डॉट, डबल डॉट और डॉट गिट भी है, क्योंकि वो मैंने गिट पे बनाया तो गिट तो होगी, तो गिट रिपोजिटरी है. तो रीड मी, उसमें एक फ़ाइल है रीड मी. यानी कि अगर मैं यहाँ पे खोलूँगा वो फाइल, मैं ओपन फोल्डर करूँगा, फाइल ओपन फोल्डर, मैं डेस्कटॉप पे जाऊँगा, वहाँ पे इफ़ला आया है, ये देखो इफ़ला आया है. आई से ओपन. नाउ आई गॉट दैट रीड मी, जो मैंने रीड मी वहाँ पे किया, रीड मी अपडेटिंग गिटहब एंड वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई एज यू कुड सी. ठीक है. तो यहाँ पर अगर मैं अब नई फाइल इसमें बनाऊँगा, आई वांट टू क्रिएट सम न्यू फाइल्स हियर, से फॉर एग्जांपल index.html. okay, and I will have here for example style.css, और index.html में मैं कुछ बनाऊँगा यहाँ पे. ठीक है, हो गया. Command S, Control S, save it, and I open up the terminal now. Terminal, new terminal. ठीक है. अब अगर मैं कहूँगा git status status, तो डेफिनेटली मेरे पास दो फाइल्स मैंने बनाई हैं, वो रेड के अंदर है. तो मुझे क्या करना चाहिए इनको? git add dot. तो अगर मैं अब कहूँगा git status, so definitely they will be green both. Now they are ready to be what? stay committed. So I can say git commit, है ना? yes sir. और फिर क्या करते हैं commit के वक्त? -1 whatever. ओके, हो गया काम. अब मुझे ये कहाँ लेने हैं remote जी? git remote सो पुश करेंगे ना. ओरिजिन मेन तो है ही, है ना? सो इफ आई गो हियर इनटू द गिटहब, जो ये मेरा है, इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो क्या ये इसमें चेंजेस आ गई? इंडेक्स भी आ गया, स्टाइल भी आ गया. अब अगर मैं यहाँ चेंज करता हूँ, कहाँ पे? यहाँ पे मैं एडिट करूँगा, क्लिक इट, एडिट इट, देयर, ऐड सम p tag हियर, you should say p tag, huh? And call it, change it in GitHub. ठीक है, and commit the changes, commit. अब ये कैसे आएंगे मुझे वहाँ पे VS कोड में? git pull, very good, git pull. So when I say git pull, ये change पता नहीं क्या स्पेलिंग आ गई है, GitHub, it is done. So I think we are now the happy customers. We have done both things. We have done what? We have started from the GitHub
and then did all things and put up on the GitHub. Sorry, started on the Git and put with all those stuff and all the process and put it into the GitHub. And now we started from the GitHub and did successfully got it into the Git, and again now we are linked in a synced manner, right? समझ में आ गई बात है? हाँ जी, any questions? अगर questions नहीं है, so next time we will do the branching. We'll see how we collaborate on it, and that will be the last lecture of it, I guess, where we collaborate stuff and we try to create different branches. Then we may also have the forks and merges and lots more. Okay, Ji? That's all for today. See you guys on Monday, inshallah.